Okay, we are live and we are here on Parent Station with the expert talk. And our expert for today, dear people, is Ruchira Chukhakar, and she's the founder of Saransh World. I'm so very happy. I am the parent partner at Parent Station, and at Parent Station, we bring amazing talks by very expert people from different fields, may it be education, nutrition, art, or child development. So there are different wonderful topics every time. And I thought, what could be better than relating art to growing up of children and to stress management and to deal with the different difficult situations parents and teachers and children are going through. क्योंकि आजकल सब घर पे है, schools are closed, and parents are always searching for an opportunity so that children can learn something creative. They could manage their time and they can even deal with the stress. क्या करें? So what could be better than art, right, Ruchira ma'am? So I Yes, know you are the yes, founder of Saransh World, and you yes, are Saransh is something about proud Indian folk art, something that deals in folk art. It's an institution. You have an art gallery in Surat, and you believe in creating awareness of different folk arts on canvas, paper, fabric, wood, glass, and terracotta. Oh my God, itne sare materials. yes. And I cannot forget, I have had a wonderful class with Ruchira ma'am, and she has taught me a wonderful, lovely folk art, which I will show you afterwards. So, Ruchira ma'am, welcome to Parent Station Expert Talk. Are you happy to be here? I am very happy to have you here today. Yes, of course. I am too happy to have you as a moderator. And thank you, Parent Station, for having me here. Thank you so much. Okay, so Ruchira ma'am, let us start our expert talks. Let us have Yes, some few important tips, some kind of techniques, and some kind of learning related to art and stress therapy. Because the yes, topic for today is how to manage stress with art. So सबसे yes. पहले क्योंकि आप फोक आर्ट में एक्सपर्ट हैं और सारांश के बारे में कुछ ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि आई नो यू हैव पार्टिसिपेटेड इन मेनी आर्ट एग्जीबिशंस लाइक यू नो the Kala Ghoda, I think, which is a very, Yes, very important medium for artists who put up their art for display. And you yes. always participate in all the exhibitions related to art. तो मैम आप सारांश के बारे में थोड़ा सा हमें ज्यादा जानकारी देंगे? या श्योर। सारांश वर्ल्ड ऑफ फोक आर्ट में मैं खुद लर्न भी करती हूँ, दूसरों को मैं सिखाती भी हूँ, और मैं हो सके उतना आर्ट को अलग अलग मीडियम पे लेके जाके उसको स्प्रेड करने का काम करती हूँ। तो मैं हमेशा ऐसे पार्टनर्स ढूंढती हूँ, ऐसे फ्रेंड्स ढूंढती हूँ, ऐसे आर्ट लवर्स ढूंढती हूँ जिससे मैं अपनी आर्ट शेयर कर सकूं, उसको एक अलग ही एक अपडेटेड लेवल पे लेके जा सकूं। तो ये मेरे सारांश वर्ल्ड की जो फाउंडरशिप है उसका मोटिव है। तो कोई भी ओके मुझसे मैम. जुड़ना चाहे सो दे आर वेलकम फॉरएवर। Okay, so you have an Instagram page which is also by the name of Saransh, जहाँ पे यस, हम आपकी all what wonderful things you are doing. I think you are doing a lot of live workshops and you are teaching यस, children online, right? Because यस, everybody is यस, home. Okay. यस। तो मैम क्या आप मुझे बता सकते हैं what is exactly folk art? How is it different from the other arts and how important it is to कैसे ये रोल प्ले करता है स्ट्रेस मैनेजमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आप कुछ बता सकते हैं? या श्योर। देखिए, फोक आर्ट जो है वो हमारे इंडिया इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स एंड एकदम से यूनिक हमारा कंट्री है। तो उसके अंदर राइट. जो भी अलग अलग रीजियंस है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, नेपाल, सभी अलग 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 फोक आर्ट है। तो फोक आर्ट मतलब क्या होता है, ट्राइबल आर्ट मतलब क्या होता है कि जो पर्टिकुलर रीजियन जो अपनी कला को जो भी अलग अलग माध्यम से लेके जाते हैं, वो उसकी एक पर्टिकुलर फोक आर्ट बन जाती है। जैसे हमारे गुजरात और महाराष्ट्र या डांग की बोले तो वो वारली आर्ट है। फिर वाली बंगाल आर्ट, की राइट. हो जाए तो वो कालीघाट आर्ट है। उसके बाद बिहार ओके. और नेपाल में अगर हम देखने जाए तो वो मधुबनी आर्ट है। फिर मध्य वेरी प्रदेश ट्रू. की कलमकारी आर्ट है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे रीजन है जिसकी पर्टिकुलर रीजन वाइज फोक आर्ट्स अलग अलग होती है। राजस्थान की अगर हम देख ले तो फर्ड आर्ट है। तो जो भी राइट. डिफरेंट रीजन जो भी अपनी कला को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक फोक आर्ट बन जाती है।
और फोक आर्ट कब से है, जब से ये डिजिटल मीडियम्स नहीं थे, तो तब एंटरटेनमेंट के लिए भी वो लोग ये काम कर रहे थे फोक आर्ट के द्वारा। तो ये ओके फोक आर्ट हम अभी आगे लेके जा रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड इंडियन फोक आर्ट। सो बहुत सारे हैं, वारली, मधुबनी, गोंद आर्ट, वर्ड आर्ट, जेमिनी ओके रॉय की जो है वो कालीघाट आर्ट, बहुत सारी ऐसी फोक आर्ट्स है, कलमकारी आर्ट है, सोरा आर्ट है, बहुत सारी फोक ओके आर्ट्स है। मैम सम यस नेम्स आई नो बिकॉज मैं देखती हूँ कि जो हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज है दे आर फोकसिंग ऑन दिस folk arts, either it यस be through paintings or it be through paintings on saris or clothes or on any kind of tapestry. It is becoming famous day by day, but how do यस we promote folk art in education? जैसे हमारी new education policy में you might have observed that art, craft and sports is going to be given equal importance as studying, right? तो आप किस तरह से कुछ हमें एडवाइस दे सकते हैं कि हाउ अर्ली कैन दे बिगिन, चिल्ड्रन हाउ अर्ली कैन दे बिगिन, सो हाउ कैन पेरेंट्स गाइड द चिल्ड्रन रिलेटेड टू आर्ट इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ फोक आर्ट? या मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी कि फोक आर्ट हमारे जैसे फोक डांस होते हैं, फोक म्यूजिक होता है, यस फोक लिटरेचर होता है कई बार, वैसे ही ये फोक आर्ट है। तो हम जो राइट भी फोक आर्ट होती है, फोक जो भी फॉर्म्स होते हैं, वो हमको हमारे रूट से बहुत जोड़े रखते हैं। तो कोई राइट भी चिल्ड्रन, अभी कितना डिजिटल और कितना हाईटेक जमाना आ गया है कि हम लोगों को गांव में जाके रहने का भी टाइम नहीं मिलता है। हम अगर वेकेशन और वो सब में अगर बाहर घूमने भी जाए तो हम लोग अब्रॉड की ट्रिप ज्यादातर हम लोग प्रिफर करते हैं। तो उसके बजाय हमारे खुद के इंडिया के जो भी अलग अलग रीजन्स है, वहां पे जाके हम उसकी ओरिजिनलिटी और उसकी जो डेप्थ है उसको हम पहचाने। तो वैसे ही ये फोक आर्ट भी काम करता है कि वो हमको हमारे रूट से जोड़े रखता है। आप जो भी ओके रीजन में रह रहे हैं, या आपको जो भी मतलब अंदर से ऐसे ये फीलिंग्स आनी चाहिए कि हाँ, ये फोक आर्ट में मुझे कुछ ज्यादा डेप्थ में जाना है, मुझे उसमें बहुत ओके सारा काम करना है। सो ये इम्पोर्टेंस रहता है फोक आर्ट का। तो हम बच्चों को, बड़ों को, इवन एज्ड लोगों को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं कि वो फोक आर्ट से पूरा एक मेडिटेशन लेवल पे जा सके और उसको अलग अलग लेवल पे रिप्रेजेंट कर सके। तो मैम मैंने जैसे मधुबनी या आपने कोई और वर्ली आर्ट देखते हैं तो इट स्टार्ट्स विथ सिंपल फॉर्मेट्स, मतलब छोटे बच्चे भी ये फॉर्मेट सीख सकते हैं एंड इट डज यस नॉट नीड वेरी हाई फाई मटीरियल. If I think यस it needs a single color, right, a paper or a fabric or any यस medium to start with. Or if यस we connect our children with our tribal art or folk art, they will understand the values of Indian culture, Indian heritage and Indian self existence. मतलब आप देख रहे होंगे कॉन्टेम्प्ररी आर्ट है या वेस्टर्न आर्ट है, वो किस तरह से ये आर्ट से अलग होगा. लाइक व्हाई शुड वी टीच अवर चिल्ड्रन फोक आर्ट? हाँ, इसके बारे में बताना चाहूंगी कि फोक आर्ट हमें बच्चों को या बड़ों को या खुद क्यों सीखनी चाहिए। तो मैंने जैसे बताया, वो हमें रूट से जोड़े रखता है, और उसकी जो सिंप्लिसिटी है, फोक आर्ट की जो भी सिंप्लिसिटी है, वो ही उसकी ब्यूटी है। हम लोगों ओके को कोई भी ऐसे बड़े इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर हम बोल सके कि बड़े कोई कलर की या फिर कोई ऐसे मीडियम की जरूरत नहीं होती है। हमारे पास एक पेपर है, एक पेन है या एक पेंसिल है, तो हम उसी से बहुत ही अच्छे अच्छे क्रिएशन घर पे बैठे बैठे बना सकते हैं। तो पेंडेमिक में मैंने ऐसे भी ऑनलाइन वर्कशॉप्स लिए हैं कि जिनके पास जो भी मटेरियल है, तो उनसे हम लोग उसको कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव बना सके। तो इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है कि हमें कैनवस ही चाहिए, कि हमें पेज ये वाला ही चाहिए, या कलर्स वो वाले इतने महंगे ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और इतनी सिंपल आर्ट है, जो भी ज्योमेट्रिकल हमारे बेसिक शेप्स होते हैं और हाथ की थोड़ी बहुत मूवमेंट्स होती है, जो प्रैक्टिस से बहुत से लोगों में आ ही जाती है कुछ ना कुछ करके। तो वैसे हम ओके सीख सकते हैं फोक आर्ट को। Okay, so my next question is, ma'am, can everyone do it? Can small children do it, adults do it, or can anybody do folk art? Yes, yes, definitely. Age is no bar for the learning of folk art at any cost. मतलब कोई भी एज का, अभी मेरे पास डॉक्टर्स भी सीख रहे हैं जो कि 65 अप एज के हैं, ये लॉयर Okay, सीख रहे हैं, टीचर्स खुद मेरे पास फोक आर्ट सीख रहे हैं अलग अलग फॉर्म में, और बच्चे और लेडीज तो है ही।
तो मतलब कोई भी आर्ट, कोई भी एज का जो भी पर्सन है वो सीख सकता है आराम से। हाँ, थोड़ी बहुत उसको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। किसी का हाथ जल्दी बैठ जाता है, किसी का हाथ बैठने में थोड़ी थोड़ी देर लगती है, बट बेसिकली जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप से ही कोई भी आर्ट फॉर्म बनता है। सो एवरीवन कैन लर्न दिस आर्ट वेरी इजीली। ओके मैम, सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट अनवाइंडिंग विथ आर्ट, मतलब कि आप सपोज आपका डे बहुत स्ट्रेसफुल है या फिर आप पूरे दिन घर पे हैं, आपको पता नहीं है आपको क्या करना है, सो आर्ट इज द बेस्ट मीडियम और लेटिंग योर फीलिंग्स आउट और फीलिंग दैट ओके आई डिड समथिंग नाइस, यू फील वर्दी ऑफ योरसेल्फ। तो आप कुछ ऐसा बता सकते हैं, ऐसे कोई कलर्स होते हैं जो डी स्ट्रेसिंग से रिलेटेड होते हैं, आप टेंशन में होते हैं तो, या आपको रिलीव होना है तो आप कौन से कलर्स के साथ वर्क कर सकते हैं? देखिए, कलर्स के बारे में हम बात करने जाएं तो भगवान ने इतनी अच्छे कलर्स बनाए हैं, इतनी अच्छी कलरफुल दुनिया बनाई है कि सभी कलर्स का एक कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रहता है। चाहे वो ब्लैक कलर हो, व्हाइट कलर हो, या रेड हो, ग्रीन हो, येलो हो, ब्लू हो। हाँ, पर अगर स्ट्रेस लेवल में आप होते हैं और कभी कभार आर्ट करने बैठते हैं तो जस्ट डू ओनली 1 or 2 कलर्स विथ यू। ओके। उसमें आप व्हाइट पसंद कर लीजिए और उसके साथ आपको जो भी कलर अच्छा लगता है वो आप पसंद कर लीजिए। और जो भी आपको फोक आर्ट का फॉर्म पसंद है उसमें आप काम कर सकते हैं। तो ओके। बहुत सारे, जैसे अगर स्ट्रेस में है तो ब्लू और ग्रीन और येलो कलर का आप ज्यादा यूज कीजिए, व्हाइट कलर तो डेफिनेटली यूज कीजिए। तो राइट। मेंटल पीस जो है वो हमें बहुत अच्छे से उसमें मिल जाती है। ओके। और मैम ऐसी कोई टेक्निक है, जैसे आई थिंक मंडाला आर्ट, देयर इज समथिंग बहुत क्रेज है, जो जहां पे भी देखो देयर इज मंडाला आर्ट, सो व्हाट इज मंडाला आर्ट, इज इट रिलेटेड टू डी स्ट्रेसिंग? या देखिए, कोई भी आर्ट फॉर्म जो है वो डी स्ट्रेसिंग करता ही है, क्योंकि आप जब आर्ट करने बैठते हो, आर्ट पेंट करने बैठते हो, तो आप जब उसमें खो जाओ, आपको पता ना चले कि आजू बाजू में क्या हो रहा है क्या नहीं, और आपकी एक अलग से एक दुनिया बन जाती है। तो कोई भी हम्म। आर्ट फॉर्म जो है वो हमारे लिए डी स्ट्रेसिंग मेडिटेशन का काम करती है। और पर्टिकुलर ओके। मंडेला आर्ट की मैं बात करूं तो मंडेला आर्ट इज काइंड ऑफ बुद्धिज्म आर्ट। जो बुद्धिस्ट बुद्धिज्म लोग आर्ट, थे ओके। वो टाइम से ये आर्ट चलती आ रही है। और अभी जैसे डिजिटल मीडियम के साथ साथ उसका इतना चलन बढ़ गया है कि बहुत सारी अलग अलग जगहों पे हम मंडला आर्ट को यूज करते हैं। वो कलरफुल भी होती है, सिंगल कलर मोनो कलर में भी होती है, और मल्टी कलर्स में भी होती है। तो मंडल आर्ट बेसिकली हम उसको कंपेयर करने जाएं अगर, तो वो मेहंदी जो हम लोग हाथ पे बनाते हैं कोई भी फेस्टिवल पे या कोई भी ओकेजन पे, तो ओ वो रियली? काइंड ऑफ मेहंदी आर्ट जैसा है कि एक ओ। के बाद एक आप शेप बनाते जाओ, आगे डिजाइन बनती जाएगी, और इतना हम्म। अच्छा कारवा बनता जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कब आपका पेंटिंग खत्म हो गया, कब आपका इतना अच्छा टाइम स्पेंड हो गया, और इतना नया इतना मस्त क्रिएटिव आपके पास आउटपुट भी आ गया। तो मंडल आर्ट इज अ अच्छा। वेरी मेडिटेटिव आर्ट। आप करने बैठोगे तो आप करते ही रहोगे करते ही रहोगे, ऐसी वाली आर्ट है। ओके मैम, सो इन द एंड हम वेट कर रहे हैं कि आप हमें अलग अलग फोक आर्ट्स या कोई ऐसा आर्ट है उसके सैंपल्स दिखाएं, बट व्यूअर्स को वेट करना पड़ेगा एंड तक के लिए, तब हम उनको या सैंपल्स दिखाएंगे। सो नाउ मैम टेल मी के एज पेरेंट्स थिंक आर्ट में क्यों क्यों और कोई चीज नहीं सिखाई जाए, क्यों स्पोर्ट्स नहीं सिखाया जाए, तो आर्ट इज अपार्ट फ्रॉम मेडिटेशन इट कैन बी मेड इनटू अ करियर, राइट? उसमें से एक करियर बना सकते हैं बच्चे जो क्रिएटिव है आर्ट में, और पेरेंट्स को पता चलता है कि दे आर गुड एट इट, इफ दे ट्राई टू इम्प्रूव देम, दे पुट देम टू प्रॉपर क्लासेस और प्रॉपर ट्रेनिंग। तो आपको क्या लगता है, कैन इट टर्न इनटू अ करियर लाइक हाउ यू आर डूइंग समथिंग इन आर्ट? यस यस डेफिनेटली। अभी जैसे जितना जमाना इतना फास्ट होता जा रहा है, इतना मतलब बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, दो दो आर्ट फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, साथ में उनका रेगुलर स्टडीज भी कर रहे हैं। तो अगर आपको आर्ट में पूरा करियर बनाना है तो आप 12th के बाद ऐसा कोई लाइन सिलेक्ट कीजिए, जैसे फाइन आर्ट है, अप्लाइड आर्ट है, उसमें ओके। स्कल्पचर भी आ जाते हैं, या आप पेंटिंग बनाना भी सीख जाते हैं, पॉटरी भी सीख जाते हैं। तो ऐसी बहुत ओके। सारी एजुकेशनल सिस्टम भी है। पहले आप बैचलर्स कीजिए, उसमें फिर मास्टर्स कीजिए, फिर आगे आप पीएचडी लेवल तक भी जा सकते हैं आर्ट में। फिर आप उसमें टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, या फिर खुद अपना एक पूरा पेंटिंग का कलेक्शन बना के उसको एग्जिबिट भी कर सकते हैं। तो आर्ट के अंदर अगर ओके। आपको करियर बनाना है तो वो बहुत ही आप पैशनेट होने चाहिए बस उसमें। अगर अभी ओके। हमारी एज के भी कोई लोग अगर आर्ट में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इवन हम ओ। लेडीज के लिए अगर मैं बोलना चाहूँ तो हम लोग अपना रूटीन वर्क, बच्चों को संभालना, ऑफिस वर्क संभालना,
और उसके साथ साथ भी हम आर्ट का थोड़ा बहुत टाइम निकाल के काम कर पाते हैं, और फिर उसको आप ओके एग्जीबिट कीजिए, फिर लोगों के रिव्यूज दीजिए, तो एक करियर आपका भी एक फ्यूचर में बनता जाएगा कि 40 या 45 प्लस के बाद आप अगर अगर थोड़े बहुत फ्री हो जाते हैं तो उसे आपका भी एक करियर एक साइड में अलग बनता जाता है, और फिर आपकी जो पास्ट लाइफ जो है वो आप मतलब फ्यूचर लाइफ जो है वो आप आराम से उसके अंदर स्पेंड कर सकते हैं। तो बहुत सारी राइट इसमें मैम। इंटीरियर में भी हम जा सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग में भी हम आर्ट के द्वारा जा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है लोगों के लिए। और मैम आजकल तो हम देखते हैं कि पिंटरेस्ट, यू हैव यू सीन पिंटरेस्ट पे क्या अच्छे Yes, वंडरफुल आइडियाज मिलते हैं मैम। एक बार पिंटरेस्ट खोल के कोई पर्टिकुलर लाइक से बॉटल आर्ट लिखिए या मंडाला आर्ट लिखिए yes, या फिर ब्लॉक पेंटिंग लिखिए, नाइफ केपल पेंटिंग लिखिए, देयर आर सो मेनी वेरिएशंस एंड यू विल गेट लॉस्ट मैम। सो yes, पीपल yes, आर अर्निंग विद देयर यूट्यूब वीडियोज ऑन आर्ट। एम आई राइट? मतलब आप यूट्यूब जी, वीडियोज अच्छे बनाते हैं आपके खुद के आर्ट फॉर्म्स के, तो भी you can develop it into a fan following and an earning also. So yes, parents need to yes, understand कि जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा academically ही highlighted हो. Things like yes, art also play a very important part. Parents should understand बच्चों को क्या आता है और उनकी इंटरेस्ट हो तो उनको स्टॉप नहीं करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए. yes, So ma'am, yes, yes. let me know that there are other things like coffee art and sand art. मैम ये क्या होता है coffee art? कॉफी आर्ट माने जो हम कॉफी पीते हैं, ब्लैक कॉफी या मिल्क वाली कॉफी, वो जो पाउडर होता है उसी से बहुत अच्छी क्रिएटिव आर्ट बन जाती है। क्या उसके बात कर अलग रहे हैं मैम, अलग शेड सीरियसली? से लेकर के बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग्स हम बना सकते हैं। किसी का स्केच भी बना सकते हैं, नेचुरल सीनरी भी बना सकते हैं, कोई पर्टिकुलर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद है तो उससे भी हम कॉफी से काम कर सकते हैं। बस उसका डार्कनेस लाइटनेस वो सब हमें मेंटेन करना आना चाहिए, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कोई भी आर्ट के अंदर, तो वो भी बहुत अच्छी बन जाती है। ओके और रही सो बात इस, सैंड आर्ट की, हाँ, या या सैंड टेल मी आर्ट मैम। में ऐसा होता है कि सैंड आर्ट में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप शेडो शेडो से सैंड आर्ट भी कर सकते हैं, और वो सब ओके मतलब उसमें एक प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मैंने वो आर्ट पर्टिकुलरली की नहीं है, बट सैंड आर्ट इज ऑल्सो वेरी नाइस फॉर्म ऑफ क्रिएटिव क्रिएशन, सो वी so it कैन can डू help इट you ऑल्सो। de-stress, like I have heard that people who want to, like there are doctors who are having a very stressful routine, और कोई टीचर्स प्रोफेसर्स जो आउट ऑफ द वे जाके जब ऐसा कुछ अलग करना चाहते हैं तो वो आर्ट क्लासेस ज्वाइन करते हैं. सो यस, आपको कैसे, आपको नहीं पता कि आपका बच्चा शायद द नेक्स्ट एम एफ हुसैन हो सकता है. सो हाँ, प्रमोट आर्ट, प्रमोट फोक आर्ट, बिकॉज इट्स अ यस। वेरी वंडरफुल मीडियम. एंड मैम टेल मी के बच्चों को आर्ट से क्या बेनिफिट हो सकता है मैम? शुड इट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्टडी रूटीन? मतलब जैसे पीरियड्स होते हैं तो आर्ट का भी एक पीरियड होता है, तो व्हाई इज आर्ट इम्पोर्टेंट? आर्ट हम बच्चों को सिखानी चाहिए। आर्ट हम मतलब उनको चाइल्डहुड से उनको हमें उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। एक्चुअली बच्चों को, सब बच्चे आर्ट के लिए नहीं बने होते, सब आर्ट बच्चों के लिए नहीं बनी होती है। तो हम राइट. लोगों को बच्चों को बहुत ही चाइल्डहुड से ऑब्जर्व करना चाहिए कि उसको इंटरेस्ट किस में है। उसको कलर्स में ओके इंटरेस्ट इंटरेस्ट है, उसको स्क्रिबलिंग में इंटरेस्ट है, वो परफेक्शन रखता है कलर में या रखती है कि नहीं। तो वो सब जाके फिर हम लोगों को उन लोगों को अलग अलग आर्ट के क्लासेस या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी वर्कशॉप्स होते हैं उसमें हमें उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो वो आगे जाके अगर उनको अगर उसमें रुचि है तो वो लोग उसमें आगे जा सकते हैं, और एक ओके नेक्स्ट लेवल तक हाँ वो लोग जा सकते हैं। तो बच्चों को जरूर से, आप छोटे हो बड़े हो, चाहे अभी स्कूल में जा रहे हो ना जा रहे हो, फिर भी उन लोगों को कलर्स लाके दो, क्रेयॉन्स लाके दो, पेपर का एक पीस दे दो, और फिर देखो वो क्या कर रहे हैं। राइट. वाटर कलर भी लाके दीजिए तो वो उसमें हाथ डीप करके फिंगर पेंटिंग करते हैं या क्या करते हैं, उसको गिराते हैं, दो कलर में से कुछ तीसरा नया कलर बनाते हैं। तो वो उनकी क्रिएटिविटी भी उसमें बहुत सी अच्छी सी खिलती है। तो लेट देम प्ले ओके विथ कलर्स एंड क्रेयॉन्स एंड पेपर्स, उनको जो भी करना है वो करने दीजिए उनको। ओके. चिल्ड्रन लव मेसी वर्क, राइट मैम? इट स्टार्ट्स यस, विथ यस, मेसी वर्क. डेफिनेटली, सो डेफिनेटली, दे विल डेफिनेटली। लाइक, यू नो, ऐसा कुछ मैंने देखा है करिकुलम में, टेक्सचर पेंटिंग होता है, मतलब अलग अलग मटेरियल्स को आप यू यू दे आस्क देम टू डिप इट इनटू कलर एंड देन वी डू टेक्सचर फॉर्मेट, जो बड़े यस, हाउसेस के वॉल्स पे भी हम देखते हैं. सो टेक्सचर आर्ट यस, इज अनदर वंडरफुल मीडियम ऑफ डी स्ट्रेसिंग आई गेस. तो किस चीज यस, से यस। टेक्सचर आर्ट कर सकते हैं मैम, थोड़ा बता पाएंगे?
टेक्सचर आर्ट में हम अपने घर में जितने भी अलग अलग मटेरियल है, जैसे कॉटन हो गया, फिर ईयरबड्स हो गए, उसके अलावा नाइफ हो गया, पहले तो हमारे हाथों की फिंगर्स हो गई, उससे भी हम राइट। टेक्सचर पेंट कर सकते हैं। बस हमारे पास ओके। कलर होना चाहिए, पीस ऑफ पेपर होना चाहिए, और हमको जो भी एक करना है वो हम उसको डीप करें, कलर अलग बनाएं, उसके अंदर डेप्थ करें, कुछ भी करे वो अच्छा सा। उसके पास अगर स्केच पेन है, ब्रश पेन है, तो वो उससे स्क्रिबलिंग करके भी पूरा पेज भर सकते हैं वो लोग, और बहुत सी अच्छी अच्छी आर्ट बना सकते हैं। एक पेरेंट को मैं एक और सलाह दूंगी कि आपके बच्चे अगर घर में दीवारों पे अगर कुछ ना कुछ पेंट कर रहे हैं तो उनको रोकिएगा मत। हाँ, ओके। आप इतना कर सकते हैं कि आपने अच्छे खासे घर को वो बिगाड़े नहीं, तो उसको बोल दीजिए कि आपको यही वॉल मिलेगी, आपको ये जो भी पेंट करना है वो यही वॉल पे करना है। तो वो एक दिन, ओके। एक आपको याद रहेगा कि एक दिन वो जो वॉल है वो एक अच्छा सा पेंटिंग बन के रह जाएगी, और एक अच्छी सी याद बन वेरी के रह ट्रू। जाएगी। ओके मैम, तो इसके लिए एक अच्छा सा आइडिया है, बिकॉज माई चिल्ड्रन यूज टू डू दैट। तो मैं पूरे या वॉल्स पे न्यूज़पेपर सेलो टेप से लगा देती थी, और फिर उनको उसके ऊपर स्क्रिबल करने देती थी। एंड देन ये अभी आजकल तो आपको प्ले स्कूल्स के लिए और होम स्कूलिंग के लिए आपको ईजल बोर्ड्स मिलते हैं मैम। दे आर हैविंग रिमूवेबल, जैसे टिश्यू पेपर रोल्स होते हैं ना, वैसे पेपर रोल्स होते हैं, और यस चिल्ड्रन कैन कीप स्क्रिबलिंग और पेंटिंग ऑन इट। सो देर आर यस। वंडरफुल वेज, जैसे रोलर रोलर ब्रशेस आते हैं ना, हम समर जी कैंप जी में जी उनको करवाते हैं रोलर ब्रश पेंटिंग, उनको बहुत जी मजा जी जी आता है। दे जी। जस्ट लव इट, दे जस्ट कीप रोलिंग कलर ऑन द वॉल, दे फील यस दैट दे आर पेंटर्स। सो यस, आई यस अग्री टू व्हाट यू आर सेइंग मैम। नाउ यस। कैन वी सी एनी वन नाइस एग्जांपल ऑफ अ फोक आर्ट? आप कुछ बता पाएंगे मुझे, या कोई भी डेफिनेटली एक आई एम टेक्निक? शोइंग यू माय फोक आर्ट एग्जांपल्स, जो मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे पीसीज बनाए हैं। कैन यू सी दिस? दिस इज यस वारली मैम। फोक एंड आर्ट। ओके, Yeah, I एंड have व्हाट made मटेरियल्स? two deers over here. This ओके। is just a visiting card holder. ओके। फैब्रिक का ये पूरा कार्ड वंडरफुल। होल्डर है, और उससे मैंने पेंट किया है। मैम उसके आप अलावा मेरे थोड़ा पास क्लोज ये बताएंगे, वो मटेरियल आपने जो पेंटिंग के लिए यूज किया है, व्हाट इज द मटेरियल, व्हाट इज द पेंट, और जी व्हाट जी इज द जी। ब्रश, यू यूज अ ब्रश फॉर दैट? Yes, yes. I am using fine art and Camlin brushes over here, and this is silk ओके। fabric art clutch. तो इसको हम ओके। यूज कर सकते हैं फीमेल्स। और इसमें मैंने जो ओके। है वो पेंटिंग बनाया हुआ है, ये वाला एक्रेलिक कलर मैंने यूज करके ये पूरा बनाया हुआ है। ओके। इसमें मैंने व्हाइट कलर का पहले बैकग्राउंड कर दिया है, और ब्लैक कलर के ब्रश कलर को लेकर के फिर इसके ऊपर पेंटिंग किया हुआ है। ये पूरा ओके। म्यूजिकल थीम है इसमें। राइट मैम, सो व्हाट आर्ट इज दिस, व्हाट फॉर्म ऑफ आर्ट वाज दैट? ये वारली आर्ट है, वाली आर्ट। महाराष्ट्र और हमारे गुजरात की बॉर्डर का जो डांग के आदिवासियों का वर्क है, ये वारली आर्ट है। ओके मैम। और इसके लिए जो इसके पेंट्स अलावा यूज ये होते जो हैं मैम, वो कौन से पेंट्स होते हैं? पोस्टर्स होते हैं क्या, कोई नेचुरल, कोई राइस पाउडर होता है, या किस किस चीज से किया जा सकता है ये? देखिए, अलग अलग मीडियम के ऊपर हम अलग अलग कलर से काम कर सकते हैं। अगर हमें पेपर पे काम करना है तो हम लोग पोस्टर कलर या वाटर कलर यूज कर सकते हैं। अगर हमें हम्म। वही पेंटिंग जो है वो हमें अगर कैनवस पे बनाना है तो हम ऑयल कलर्स यूज कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर यूज कर सकते हैं। वही कलर अगर वही पेंटिंग अगर हमें ऐसे कोई फैब्रिक के चीजों पे बनाना है, ये मेरा पाउच है पूरा मोबाइल का, इससे मैंने मधुबनी हाँ, मोटिव्स नाइस। पेंट किए हुए हैं। तो ये सो या आई तो सी अगर ये हमें अब फिशेस। कलर करना है, काम करना है, या फिशेस है ये, हाँ, तो इसके ऊपर मतलब हमारे पास बहुत मधुबनी में अच्छे से मैम फैब्रिक कलर। एनिमल फॉर्म्स होते हैं, लाइक मधुबनी इंक्लूड्स ह्यूमन फॉर्म एंड एनिमल और बर्ड फॉर्म्स, क्या होता है उसमें मधुबनी? यस यस यस। मधुबनी आर्ट जैसे फोक आर्ट जैसे भी होते हैं, तो फोक पीपल आर एकदम इजीली इंट्रोड्यूस होते हैं नेचुरल एलिमेंट्स के साथ, जैसे नदी, ओके। पर्वत, सूरज, चंद्र, फिर उसके आजू बाजू में रहते हुए लोग, उसके आजू बाजू रहते हुए एनिमल्स, बर्ड्स। तो उसी से वो लोग इंस्पायर होके कोई भी आर्ट फॉर्म बनाते हैं। आप अगर बिहार में जाओगे तो बिहार में हर घर पे आपको मधुबनी पेंटिंग का कोई ना कोई मोटिव, कोई ना कोई पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। और वो अच्छा। अभी वो बहुत ही अच्छी नेशनल आर्ट में अभी उसको गिना जाता है, मधुबनी आर्ट को। वैसे ही ये गोंद आर्ट है।
गोंद आर्ट में भी हम ऐसे ही अलग अलग ब्राइट कलर्स यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें ओके एलिफेंट और उसका बेबी बनाया है, और उसके आजू बाजू नेचुरली जो ट्रीज है, बर्ड्स है, वो सब पेंट किए हैं। तो वैसे ही ओके सभी फोक आर्ट में वही होते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, और उसको अलग हाँ अलग तरीकों से हम उसको पेंट करते हैं और डेकोरेट करते हैं। मैम वापस एक बार क्लोजअप दिखाएंगे? गोंद गोंद आर्ट आई थिंक इज पॉसिबल विद कलरफुल स्केच पेन्स आई थिंक। यस, ये मैंने आई कैन फैब्रिक सी पे यू बनाया हैव था, यूज्ड मैंने द फैब्रिक कलर। कलर्स यूज किए हैं इसके अच्छा अंदर। यस, ओके ओके। ये मेरा पूरा एक पाउच इट है, यूटिलिटी हाँ पाउच है, उसके ऊपर मैंने पेंटिंग किया हुआ है। ओके सो इट कैन बी डन ऑन पेपर एंड यू कैन डू फ्रेमिंग ऑल्सो नो मैम, यू कैन डू अ वॉल यस हैंगिंग यस, ऑल्सो। हाँ ओके बहुत अच्छे अच्छे हम इतने 3 बाई 3 इंच की साइज से लेकर के आपको जितना बड़ा चाहिए उसका आप पेंटिंग बना सकते हो। बस आपको राइट एक जरूरत है कि प्रॉपर फोकस की, प्रॉपर एक डिजाइन बना लो, आप पहले से रफ वर्क में कर लो, और उसके बाद उसको आप फ्लोर पे लेके जाओ तो बहुत अच्छे से पेंटिंग्स बन जाते हैं। तो और मैम आप एक आर्ट एग्जीबिशन पकड़ते करके हैं। अर्निंग। सॉरी, जी ये गोंद आर्ट सपोज आई एम टेकिंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ आउटलाइन एंड देन वी फॉलो सम पैटर्न्स, मतलब हम जैसे इसमें सेमी सर्कल्स बनाए हुए थे, तो कैन यू जस्ट यस एक्सप्लेन फॉर अ बिगिनर गोंद आर्ट? लाइक ऐसे देखने से बहुत डिफिकल्ट और टफ लगता है, बट आई थिंक आई अटेंडेड वन वर्कशॉप ऑफ योर्स और आई फेल्ट सो इन लव विद दिस फॉर्म, आर्ट फॉर्म, क्योंकि ये इतना इन्वॉल्विंग है, रियली डी स्ट्रेसिंग आई एम टेलिंग। मतलब वो जो यस, पैटर्न्स बनाते रहते हैं, जैसे मेहंदी में पैटर्न्स बनती है, इट्स समथिंग जी जी सिमिलर टू जी दैट। सो कैन यू जी, गिव सम टिप्स कि किस तरह से एक बिगिनर इसको फॉलो कर सकता है? यस श्योर। अभी मैं पर्टिकुलर ये फोक आर्ट ले लेती हूँ, गोंद आर्ट। इसमें मैंने जो एलिफेंट बनाया है, कोई भी आर्ट फॉर्म आप ले लीजिए, उसमें उसके अंदर सर्कल, स्क्वायर, लाइंस और डॉट्स और ओके ट्राइंगल्स, बस ये बेसिक हमारे जो, मतलब हम लोग नर्सरी से सीखते हैं या घर में से भी सीख लेते हैं वो सब। जो है वो ओके कि लाइंस बनाओ, आप यहाँ से यहाँ तक की लाइन बनाओ तो एक ट्री बन जाएगा, थोड़ा ओके उसको घुमा के करो तो वो लीफ बन जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हम उसको बना सकते हैं। और मैं बच्चों को या बड़ों को एक बात और भी कहना चाहूंगी कि आप कोई भी हम्म आर्ट फॉर्म लो तो आप उसको पहले प्रॉपरली स्टडी करो कि उसके अंदर क्या क्या है, उसके बैकग्राउंड में क्या है, उसके फ्रंट लाइन में क्या है, उसके अंदर कौन से कलर्स यूज किए हैं, कौन से कलर बैक साइड में है, कौन से कलर फ्रंट साइड में है। तो आप जब भी ओके कोई आर्ट फॉर्म सिलेक्ट करते हैं तो उसको आप पहले प्रॉपरली स्टडी करो, फिर उसके शेप्स को आप जस्ट एक कॉपी कर लो एक पेपर पे, और उसको आप ओके गूंथो, जैसे हम लोग बच्चों को कैसे सिखाते हैं कि आप उसके ऊपर ही कंटिन्यू करते जाओ तो वो आर्ट हाँ फॉर्म हाँ आपको आ राइट। जाएगी एकदम आराम से। बट मैम नहीं तो आपने ये ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाया ना, इससे मुझे आइडिया आ रहा है कि नर्सरी में हम बच्चों को पैटर्न सिखाते हैं, हाफ यस सर्कल, यस inverted V and M shapes and wave shapes and semicircle S's. So, Gond art would be a particular beautiful way of teaching patterns to children. Maybe इतना यस elephant नहीं लेके आप simple shapes भी ले सकते हैं, flower ले सकते हैं, कोई छोटा simple सा object भी ले सकते हैं. So, मैम जी wonderful. जी, और कुछ आप दिखा सकते हैं हमें? श्योर। देखिए ये वारली आर्ट है, वारली आर्ट इज द वेरी इजीएस्ट आर्ट ऑफ द फोक आर्ट फॉर्म्स। तो इसमें Okay, क्या होता है, जस्ट ट्राइंगल्स हमें बनाने होते हैं बॉडी के लिए, और उसके ऊपर okay, जो है वो हमें सर्कल बनाना होता है फेस के लिए। अभी ये हमारा अच्छा, पूरा एक कैरेक्टर बन गया। उसको अगर हमें मेल दिखाना है तो आप उसको कुछ मत कीजिए, और अगर आपको इसमें फीमेल दिखानी है तो पीछे बन बना दीजिए, उसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लीजिए, तो वो आपकी okay, so फीमेल कैरेक्टर हो simple. जाएगी। या मैम यस, दिस थोड़ा इज और वेरी क्लोजअप सिंपल। कर सकते हैं, थोड़ा दिस सा इज और क्लोज? बॉर्डर लाइंस ऑफ ट्राइंगल, लीफ शेप, जस्ट ओके बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सिंपल आर्ट होती है ये फोक आर्ट्स। सो मैम दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल folk art by which we can teach shapes to children, like triangles are यस there, you can see the cross या मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सिंपल यस सा यस, सर्कल ऐड करके डेफिनेटली। ह्यूमन फॉर्म बना दिया गया है। सो यस ब्यूटीफुल। सो सी हमारी एजुकेशनल सिस्टम में सिर्फ जरूरत है कि आपके जैसे लर्नेड लोग हैं जो गाइड कर सके हाउ टू bind folk art to study curriculum of a child. Ma'am, it's a beautiful way of यस de-stressing, beautiful way of learning patterns. Lovely.
और कुछ मैम, कैन यू शो अस एनीथिंग ऑफ बीट, कुछ और अलग? Yeah, sure. I can show you this is knife Oh wow, painting. what is this? Okay, Yeah, this is that is canvas, knife paint. and I have Okay, done this 3D knife painting over here. Just three or okay, four colors I have used in this: purple, yellow, green, and parrot okay, green. That's it. okay. ये जो मैंने So बनाया what, है, इसको बनाने ये के लिए हमें ये क्या वाला, चाहिए मैम? या मैं शो करती हूँ आपको। ये वाला जो पेंटिंग है, ये वाला अलग अलग नाइफ से मैंने बनाया है। ये जो है ओके, वो पेंटिंग टूल्स ही है, वन काइंड ऑफ। ये आपको हाँ हाँ, स्टेशनरी में मिल जाते हैं। और ओके, उसके लिए जो हमें कलर्स चाहिए, वो हैवी बॉडी एक्रेलिक कलर्स चाहिए हमें। ये वाले हम्म, ट्यूब में कलर्स आते हैं हैवी बॉडी। तो ये मतलब सूखने के बाद थिकनेस भी ज्यादा बहुत होती अच्छे, है उस कलर्स की? हाँ, थिक, अच्छा, या ये देखिए। ओके। तो ये पेंट का ब्लॉब रख के आपको वो स्केपल नाइफ से स्प्रेडिंग करना है इसको यस, फॉर नाइफ स्प्रेडिंग आर्ट? ही करना है। यस, और ओके, ये बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आप थोड़ी बहुत इसके अंदर प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही जल्दी बन जाता है ये पेंटिंग। ये और एक पेंटिंग है ओके, सेम नाइफ पेंटिंग। ओके। इसमें मैंने ये इट कैन, खाली 4-5 फ्लावर्स बनाए हैं व्हाइट कलर के, अच्छा, और पीछे टेक्सचर किया है पूरा बैकग्राउंड में ओ, अंदर। ओके मैम। सो ये आई थिंक स्पून से भी कर सकते हैं ना? वी कैन इवन डू हाँ, इट विद स्पून से स्पून। कर सकते हैं, पर अगर हमें कोई पर्टिकुलर शेप या ऐसा कुछ चाहिए होता है तो थोड़े बहुत हमने ये पेंटिंग जो टूल्स है स्टेशनरी में हाँ, मिल जाते हैं, और इतने ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं। तो हम लोग आराम से उसको बना सकते हैं। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, वीडियोस की, या फिर कोई ट्यूटर की जरूरत होती है, तो हम आराम से हम्म। उसको बना सकते हैं। So you can follow experts like Ruchira ma'am on Instagram और Facebook, ताकि उनको उनसे आप नए टेक्निक सीख सके, या फिर आप YouTube पे भी देख सकते हैं, आप Pinterest पे भी देख सकते हैं। और ये स्केपल आर्ट जो है ना मैम, वो जो किसी को पेंटिंग नहीं आता है ना, वो इस फॉर्म से स्टार्ट कर सकता है डेफिनेटली बिकॉज उसमें कुछ ज्यादा, कोई भी पर्सन जो है वो आराम से कोई भी आर्ट फॉर्म सीख सकता है। मैंने जैसे बोला ओके, कि उसके बेसिक में जाने की हमको जरूरत होती है। मेरे पास एक डॉक्टर आए थे, उन्होंने बोला मैं ये पेंटिंग करना चाहती हूँ, पर मुझे लगता है मेरे से नहीं होगा। मैंने बोला क्यों नहीं होगा, मैं आपको बेसिक से ओके, सिखाऊंगी। मैंने बोला उनको कि आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, सर्कल, वो सब शेप्स तो आते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ आते हैं। तो मैंने बोला बस, तो आपको पेंटिंग भी आ जाएगी, उसमें कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। और फिर उन्होंने ओके, लास्टली जब पेंटिंग कंप्लीट किया तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था ये मैंने खुद बनाया है। ओके, मेरे गाइडेंस के साथ उन्होंने पेंटिंग पूरा कंप्लीट किया और फ्रेम करके उन्होंने लगाया। तो वो बोल ओ रहे कि वाओ। अब मैंने भी बना दिया पेंटिंग। कोई भी बना Okay, सकता है। so ma'am, I also want to show everyone this या, painting which I have learnt with you. यस, So ma'am, can you tell our viewers कि ये कौन सी आर्ट फॉर्म है? ट्राइबल आर्ट। अभी हम क्वेश्चनर लेते हैं, क्विज लेते हैं। हमने ये फॉर्म अभी ही दिखाया था जिसमें आपने बताया कि ट्राइंगल्स है और उसके ऊपर सर्कल्स है, और ह्यूमन यस, फॉर्म बनाने के लिए उन्होंने ऊपर सर्कल के ऊपर बन लगाएंगे तो फीमेल फॉर्म हो जाएगा या फिर मेल फॉर्म। सो यस। मैम, कुड यू टेल अ व्यूअर्स व्हाट आर्ट फॉर्म दिस इज? दिस इज वारली पेंटिंग। ओके, या, महाराष्ट्र का, हमारे गुजरात की बहुत ही फेमस वारली पेंटिंग है ये। ओके। ये हम साड़ीज पे भी देखते हैं, कर्टन्स पे भी देखते हैं, बेडशीट्स बहुत पे भी बहुत देखते बहुत। हैं। एंड यस, चिल्ड्रन यस, कैन स्टार्ट बिकॉज इट्स अ वेरी इजी फॉर्म ऑफ ड्राइंग, क्योंकि इसमें शेप्स बहुत ही इजी है, लर्नेबल है। देर आर ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स मोस्टली, बट सी हाउ यस, ब्यूटिफुल इट लुक्स। ओनली वन यस, कलर, व्हाइट कलर यूज करके I have made a big wall hanging of this, and the background is just a colorful brown paper. यस, यस। यस, सो थैंक यू मैम। इट्स अ ब्यूटीफुल मुझे आर्ट। बहुत मजा आया था आपका वर्कशॉप अटेंड करके, और बहुत डी यस, स्ट्रेसिंग लगा था, क्योंकि इन कोरोना, दिस कोविड डेज, स्टेइंग एट होम, इट वाज लाइक ओ गॉड, वी नीड टू डू समथिंग। सो आर्ट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डी स्ट्रेसिंग, लेटिंग योर स्पिरिट्स लूज, लर्निंग टू डू समथिंग क्रिएटिव। एंड बच्चे जो ये आर्ट फॉर्मेट्स एक यंग एज पे सीखते हैं, तो यू कैन नॉट इमेजिन हाउ ब्यूटिफुली दे विल बी डेवलपिंग, राइट मैम? डीपीएस यस, स्कूल यस, में डेफिनेटली। मैंने देखा है कि ये आर्ट समर कैंप्स में वो लोग फोक आर्ट कैंप्स रखते हैं मैम, स्पेशली यस, टू टीच द चिल्ड्रन ऑफ 8, 9, 10th दिस इम्पोर्टेंस ऑफ फोक आर्ट।
सो Yes. इट्स वंडरफुल। और आपको मिलके मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वापस एक वर्कशॉप आपके साथ करनी चाहिए टू लर्न समथिंग नाइस एंड एक्साइटिंग। Definitely, you are सो welcome. okay, ma'am. So my last question to you is, ma'am, there is an exhibition called Kala Ghoda which is done in Ahmedabad, if I'm not wrong, right? No, it's conducted in Mumbai in every Mumbai, February month. Every year's every February Feb. month. तो Yes. आप अपने एग्जिबिट्स उसमें रखते हैं और उसमें बहुत Yes. एमिनेंट पेंटर्स और आर्टिस्ट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल ओवर Yes. इंडिया से पार्टिसिपेशन होता है। एंड इसमें कैसे टाइप ऑफ आर्टिस्ट आते हैं मैम? दे आर फ्रॉम डिफरेंट उस कैटेगरीज? यस, उसमें जो है ज्यादातर जो है वो आर्ट के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, फाइन आर्ट के, अप्लाइड आर्ट के, या फिर इंटीरियर डिजाइन्स के, या फिर आर्किटेक्चर लेवल के, तो वो सब आके ओके। अपने पूरे पूरे आर्ट के इंस्टॉलेशंस वहां पे रखते हैं। काला घोड़ा नाम से ही उसका मतलब वो मीनिंग है कि घोड़े के ऊपर काला घोड़ा आर्ट में बहुत अलग अलग टाइप की वहां पे पेंटिंग्स होती हैं। आर्ट के पूरे पूरे स्ट्रक्चर्स वहां पे बनाए हुए होते हैं, और मोस्टली ओके। 90% वहां पे जो है वो स्टूडेंट्स ही वहां पे वर्क करते हैं। और मैंने जब रखा था स्टॉल, तो वहां पे मैंने मेरी पेंटिंग की जो भी ये थी प्रोडक्ट्स थी, जैसे ये कोस्टर का पूरा सेट है, तो मैंने ये ओके। वाले सेट्स वहां पे रखे थे, फिर पाउचेस रखे थे, स्टॉल्स मैंने पेंट करके वहां पे रखे थे। तो वैसी वाली ओके। प्रोडक्ट मैंने सेलिंग के लिए वहां पे रखी थी, क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ रियल आर्ट का ही वो लोग एक्सेप्शन करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। अगर आप कुछ राइट। डिजिटल आर्ट में लेके जाओगे तो दे विल नॉट एक्सेप्ट यू एज अ पार्टिसिपेटर। ओके, सो यू नीड टू हैव अ नेचुरल आर्ट फॉर्म। यस यस, रियल एंड ओरिजिनल आर्ट फॉर्म्स। Okay, that's wonderful, ma'am. So, ma'am, can you tell me, are we done with all the samples? आपने हमें सब बता दिया है, जो possible folk arts हैं वो हमने सब देख लिए हैं। हमने career in art के बारे में जान लिया है। What are the ma'am qualifications? आपने क्या बोले थे art के लिए? Like what are the qualifications required? क्वालिफिकेशंस में हम लोग 12th के बाद बच्चों को, 12th तक तो बच्चों को पढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि वो लोगों का 17-18 ईयर्स तक के बच्चों का बहुत अच्छे से उनका ग्रोथ हो जाता है, और उसके बाद हम उन लोगों को आर्ट के कोई भी फील्ड में भेज सकते हैं। जैसे हमारे गुजरात Okay, में सूरत में VNSGU है, और बहुत सारी आर्ट की ऐसी कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे वो लोग 12th के बाद प्रॉपरली अपियर होके बैचलर कर लेते हैं। उसके बाद अगर उनको कोई भी फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट बढ़ता है, तो वो लोग फिर उसमें मास्टर्स भी कर सकते हैं, और उसके बाद उनके okay, लिए बहुत अच्छे अच्छे स्कोप्स होते हैं करियर के लिए। डिजिटल आर्ट में भी आप लोग बच्चे जा सकते हैं, या फिर okay, आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, इंटीरियर में जा सकते हैं, okay. ऐसे। Okay, ma'am. So I had a wonderful session with you. We enjoyed talking about the different art formats. Ma'am, my last question, where I will end my session is, ma'am, I want parents to understand कि जैसे बच्चा toddler है, 2 year old, 3 year old, 4 year, 5 year. So art has no age limit. It can start very young. मतलब आपको कुछ Yes. हाई-फाई मटेरियल्स की जरूरत नहीं. All you need is colors. You can start with crayons. Ma'am, then what color should parents introduce? मतलब किस डिग्री से जाना चाहिए? What is the first medium of colors that you could introduce to children? Involve करने के बच्चों लिए को उनको एक पहले, आर्ट की एफिनिटी। हाँ। हाँ, बच्चों को पहले जो है हमें पेंसिल, सिंपल पेंसिल और पेपर दे के उनको दे देना चाहिए। स्क्रिबलिंग करे क्या करते हैं वो, ऐसे ही पेज फाड़ देते हैं पेंसिल से फोर्स दे के कलर पेज को, तो वो भी उनको करने देना चाहिए। उसको दूसरी बार समझ में आएगा कि मुझे फोर्स थोड़ा कम डालना है पेपर के ऊपर, तो मेरा कुछ ओके। पेंटिंग उसके ऊपर, ड्राइंग कुछ ना कुछ बनेगा। उसके बाद जो है हमारे पास अभी तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के नॉन टॉक्सिक कलर्स भी अवेलेबल होते हैं, कैमलिन के, राइट। फेविक्रिल के। तो उन लोगों को हमें क्रेयॉन्स देने चाहिए। क्रेयॉन्स में राइट। क्या होता है कि उनके उंगलियों की जो ग्रिप होती है वो बहुत अच्छे से बैठती है। मतलब छोटे फिंगर्स होते हैं तो उनकी ये जो मस्कुलर जो सिस्टम होती है वो भी बहुत नाजुक होती है, तो जो क्रेयॉन्स है उसके साथ वो लोग बहुत अच्छे से डील करके वो लोग काम कर सकते हैं। तो बेसिक जो ओके। है 5 इयर्स के बच्चों तक हमें कलर पेंसिल्स या फिर क्रेयॉन्स हमें उनको देना चाहिए, वो लोग अच्छे से ओके। उसके अंदर फॉर्मेशन बना सकते हैं। So thank you, Ruchira ma'am. Wonderful talking to you. Thank you so much. I, on थैंक behalf of यू। Parent Station, thank you for giving your valuable time and agreeing यस to come on this talk show. Bye, Parent Station.
and it Bye. was a great learning, ma'am. So would you want to tell थैंक यू सो anything मच। to आपके Parent कुछ Station? क्वेश्चंस ऐसे थे कि मैं भी कुछ अभी नया क्रिएशन करूंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई दिशा में जाना हम भूल जाते हैं। तो बस Right. मेरे लिए भी एक दो और दिशाएं खुल गई है बात करते करते, तो मैं उसमें आगे क्रिएशन करूंगी। एंड थैंक यू सो मच पेरेंट स्टेशन, एंड थैंक यू सो मच हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच श्वेता जी। Okay, bye bye. See you all. Bye. It was wonderful having all the viewers here. It was wonderful learning with Ruchira ma'am. Thank you so much. This is Shweta Shah signing out at Parent Station, parent partner at Parent Station. Bye bye, ma'am. Bye. You can leave, ma'am. Yeah.